वैसे ही फर्क नहीं पड़ता उनको, ये क्या टेंशन आ रहा है ना। गुड इवनिंग पीपल, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ग्रेट। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स काइंड के होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। मतलब इनको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बोल लें या पैसेज बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, इनफैक्ट आईपीमैट पे भी आता है, बट 5 ब्लैंक नहीं आते, 3 या 4 ब्लैंक आते हैं, या फिर यूजुअली उनके 2 या 3 ब्लैंक होते हैं। बट ये क्वेश्चन थोड़े इजी रखे हैं मैंने, for the reason that even if they come in CUET also, they would be of a lower difficulty. But ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान है ये. It's not going to be very very easy for you. But still, it would teach you a lot about how to use logic to fill the blanks. क्योंकि अगर vocabulary आपको नहीं आती है, then it's going to be difficult. But by using option elimination and by using contextual things, can still mark the answers. ठीक है? तो इसमें कोई थियरी या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता है. The questions are pretty simple, straightforward. I would suggest कि पहले आप पूरा पैराग्राफ रीड कर लें, और रीड करने के बाद में then you go and try to mark the answer. दूसरी चीज ये है कि you can read, let's say, first, second, third sentence, and then from that you will get to know कि first, second, third blank क्या हो सकते हैं. And as you fill the first, second, third blank, filling the other blanks become very easy for you. Something like this we can try. But yes, one thing is quite certain, that these kind of questions can be solved in a very very quick amount of time. और हमने देखा है आईपीमैट पे भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे, बट उसके अंदर 3 ब्लैंक होते हैं और थोड़े से वो डिफिकल्ट होते हैं, स्लाइटली ऑन अ हायर डिफिकल्टी. दीज आर मच मच इजियर देन व्हाट यू कम अक्रॉस इन आईपीमैट. सो ये सीयूटी काइंड ऑफ डिफिकल्टी है. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट पीपल? All of you can see the screen, and I will scroll it. So these are the, please start. Climate change dash to long-term shifts in temperatures and weather patterns. These shifts may be dashed, such as through variations in the solar cycle. But since the 1800s, human activities have been the dash driver of climate change, primarily due to dash fossil fuels like coal, oil, and gas. Burning fossil fuels generates greenhouse gas emissions that act like a blanket wrapped around the earth, trapping the sun's heat and dash temperatures. So what do you think is the first blank? First, C. Climate change refers to long-term shifts in, okay, relates to नहीं होगा, relies on होता है, so refers. Second क्या होगा? These shifts, cyclical. हाँ, D, cyclical. cyclical कुछ और हो सकता है क्या? अगर ये साइक्लिकल होगा तो फिर क्लाइमेट चेंज हुआ कैसे? फिर चेंज होगा, नेचुरल। फिर वापस ठीक हो जाएगा, वापस चेंज होगा, तो साइक्लिकल नेचुरल होगा, बी ऑप्शन।
Natural B option. B for Bombay. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? That these shifts may be dash such as through variations in the solar cycle. These shifts may be natural हो सकता है, unnatural क्यों नहीं होगा? Because these shifts may be dash such as means it is an example through the variations in the solar cycle. Can I say this is a natural phenomena? Just a moment. Okay, now I think you will have better audio. अब audio better हो गया ना? जी सर। हाँ, थोड़ा सा आवाज आ रहा था मुझे लगा उससे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि these shifts may be dash such as through variations in the solar cycle. So these shifts may be natural. Why are we not using unnatural? Because if it is unnatural, then the variation in the solar cycle should not be given as an example. Are we clear? ऑथर बोलता है कि these shifts may be dash such as through variations in the solar cycle. अगर सोलार साइकिल के वेरिएशंस की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इट इज अ नेचुरल कॉज रादर देन एन अननेचुरल कॉज, राइट? साइक्लिकल इज नॉट मेकिंग सेंस बिकॉज साइक्लिकल होगा तो फिर क्लाइमेट चेंज होगा, फिर ठीक होगा, फिर चेंज होगा, फिर ठीक होगा. सो ऑल दीज गो आउट. एथेरियल बेसिकली मीन्स हेवनली. So all these that do not make sense. But since the 1800s, human activities have been the dash driver. तो क्या लगता है क्या आंसर होगा? Human activities have been the dash driver. Yes, what do you think would be the answer? Main driver, right? Since 1800s, human activities have been the main driver of climate change, primarily due to. So primarily due to what? Dash of fossil fuels, burning of fossil fuels, right? Because it needs a gerund form. Primarily due to burning of fossil fuels, correct? Burning fossil fuels generates greenhouse gas emissions that act like a blanket wrapped around the earth, trapping the sun's heat and dash temperatures. क्या होगा? Rising, arising, raising. क्या होगा? Rising होगा या raising होगा? Rising या raising? ये तो पक्का नहीं होगा, करेक्ट? राइजिंग और रेजिंग में क्या फर्क है? सर रेजिंग होगा, सी होगा. एवरीवन अग्रीज दैट ये रेजिंग होगा ना कि राइजिंग होगा. Yes, sir. What is the difference between the two? Can anyone tell me? बताओ मेरे को. Sir, rising is to increase and raising it to because of it is increasing the temperature. Raising is needs an agent. Yes or no? Yes or no? Is this a difference? यस सर। Rising अपने आप होता है और raising कोई करता है ना? करेक्ट. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, so if you look at the context here, it tells you that burning fossil fuels generates greenhouse gas emissions that act like a blanket wrapped around the sun, trapping the sun's heat. तो कैन आई से बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जो है वो सन्स हीट को ट्रैप करता है और टेम्परेचर को रेज करता होगा, बढ़ाता होगा. बढ़ जाना और बढ़ाने में फर्क है ना. तो ये बढ़ाता है इसलिए रेजिंग टेम्परेचर्स. डिड यू अंडरस्टैंड? अगर मान लो ऐसा लिखता हूं मैं दैट डैश टेम्परेचर्स इन दिल्ली have rising या raising, कुछ भी हो सकता है. Rising generally have increased
increased the demand for electricity. ठीक है, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मुझे बताओ कि यहाँ पर रेजिंग होगा या राइजिंग होगा? क्यों राइजिंग होगा? बिकॉज टेम्परेचर अपने आप बढ़ रहा है, मुझे पता नहीं कोई बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। बट अगर कोई आके बढ़ाता है तो वो रेजिंग हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू? ये एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी मच पॉसिबल। सो राइजिंग टेम्परेचर्स इन दिल्ली हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर क्या होगा? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जनरेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट रेजिंग टेम्परेचर्स। दैट मीन्स दे बेसिकली पुल द टेम्परेचर्स अप। सबको समझ में आ गया? ऐसी चीजों पे प्लीज ध्यान देना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट मी इंक्रीज द यार एक गड़बड़ है। प्लीज प्लीज टेक द सिक्स्थ ब्लैंक। क्या होगा? killing, किलिंग है, अटैकिंग है, हंटिंग है, मर्डरिंग है? कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। सर हंटिंग। किसी ने कहा हंटिंग, किसी ने कहा किलिंग। मर्डरिंग तो नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा मर्डरिंग? मर्डरिंग क्यों नहीं होगा, कोई मुझे बताएगा? मर्डर के बाद बॉडी को यूज थोड़ी ना करते हैं, लाइक वो कह रहे यूजेबल प्रोडक्ट्स वगैरह। और मर्डर में है ना, थोड़ा सा ऐसा होता है कि इट इज ऑलवेज ह्यूमंस का होता है मर्डर। मतलब मर्डर हमेशा सोशल कॉन्टेक्स्ट यूज है ना। यू माइट किल एनिमल्स, यू माइट अटैक एनिमल्स, यू माइट हंट एनिमल्स, बट यू डोंट मर्डर एनिमल्स। यू ओनली मर्डर ह्यूमन बीइंग। और फिगरेटिवली कभी कभार यूज होता है द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, ऐसा यूज होता है ना कि दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द मर्डर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो मर्डर उस केस में अलग होता है ना। क्या ना, इसे मर्डर पक्का नहीं होगा, तो इसको हम बाहर कर देते हैं। वेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश ऑफ वेल्स फॉर देयर अटैकिंग। हमेशा पता है कहाँ होता है? जहां पर एनमिटी होती है। अटैकिंग इज ऑलवेज यूज फॉर एनमिटी, है ना, और हॉस्टिलिटी, और यू नो और बेसिकली फॉर डिफेंडिंग और फॉर ईटिंग। उस केसेस में आप अटैक करते हो, है ना। इन योर ग्रुप यू अटैक सम, प्री प्लान्ड है विद सम इंटेंशन, राइट। वेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग, हंटिंग। हंटिंग इज मोर अप्रोप्रिएट हियर, क्योंकि वेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हंटिंग ऑफ वेल्स फॉर देयर यूजेबल प्रोडक्ट्स सच एज मीट एंड ब्लड, व्हिच कैन बी टर्न इनटू अ टाइप ऑफ ऑयल दैट बिकम। तो किलिंग जो होता है ना, वो बेसिकली गलती से भी तो हो सकता है ना। तो इफ यू गिव मी द ऑप्शन बिटवीन किलिंग एंड हंटिंग, आई ऑलवेज चूज हंटिंग। Do you understand why? Because hunting is basically, hunt is better than killing, because killing can happen. इंटेंशनल है। हाँ, एक इंटेंशनल है, एक पर्पस है, एक प्लान है। Killing can be accidental as well. You might kill someone and you might not have any intention of using it. So when you are hunting elephants to use their ivory, to use their tooth for ivory, that is known as hunting of this, है ना। You hunt prey, तो ढूंढते हो आप। हंटिंग में क्या होता है ना कि ढूंढ ढूंढ के जाते हो। किलिंग में ढूंढना नहीं होता, किलिंग में मार दिया, गलती से मार दिया, जो भी है। So whaling is the process of hunting is correct. Whaling is the process of hunting of whales for their usable products such as meat and blubber, which can be turned into a type of oil that became increasingly important in the Dash Revolution. So कौन सा revolution होगा? Let's try to see. In the Dash Revolution, कौन सा revolution होगा? इंडस्ट्रियल। है ना, industrial. By the way, does anyone know the meaning of the word industrious? What is the meaning of industrious? Industrious means hard working. एक और वर्ड है जो मल्टीपल यूसेज का है। तो इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस पर्सन, इंडस्ट्रियस मीन्स वर्किंग, ठीक है। तो दिस लुक्स गुड। इट फर्दर सेज दैट it was practiced as an organized industry as early as 875 AD.
By the 16th century, it had risen to be the dash industry. कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा? देखो यही होता है कंफ्यूजिंग वर्ड है। मैंने कहा भी था आपको कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और ये वर्ड यूसेज में भी आ सकता है। प्रिंसिपल या प्रिंसिपल। एक बार सेंटेंस वापस दिखा दो किसी By the 16th century, it had risen to be the dash industry of vast coastal region. तो सेकंड वाला लग रहा है बी। अच्छा, प्रिंसिपल्स जो होते हैं आपके लाइफ के, वो कौन से होते हैं? ये प्रिंसिपल होते हैं या ये प्रिंसिपल सर सेकंड वाले। है ना? लाइफ के प्रिंसिपल्स तो ये होते हैं, राइट? और ये प्रिंसिपल कौन होता है? आपके स्कूल का होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो कहना है प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, चीफ हो सकता है। यस और नो, बताओ मुझे। चीफ इंपॉर्टेंट इसलिए वो प्रिंसिपल है, की फैक्टर। कह रहे सी ये नहीं होगा, ये हो सकता है। अगर आप देखोगे डिक्शनरी में डाल के तो प्रिंसिपल का मतलब इंपॉर्टेंट भी आता है, PRINCIPA। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, ये ध्यान में देना एग्जाम में। ठीक है, इसका मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन और क्रिटिकल। और ये दूसरा प्रिंसिपल जो होता है वसूलों वाला होता है, आपके प्रिंसिपल्स नहीं। तो ये प्रिंसिपल्स प्लूरल में है और ये होता है प्रिंसिपल जो सिंगुलर में। इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या? इट्स मैटर ऑफ वैल्यू। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मतलब ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द वैल्यू। सब प्लूरल में भी यूज होता है, सिंगुलर में भी यूज होता है। द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द वॉर। तो अगर कोई ये बोलता है व्हाट वाज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द वॉर, तो आप कौन सा प्रिंसिपल यूज करोगे? हम्म? बताओ मेरे को। पहला वाला। पहला वाला यूज करोगे ना, बिकॉज पहला वाला क्या होता है? चीप और इम्पोर्टेंट। दूसरा वाला होता है वसूल। तो जहां वैल्यू रिप्लेस होगा वहां पर वो आ जाएगा ये वाला प्रिंसिपल, और जहां मेन या चीफ होगा वहां ये वाला प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, क्लियर? ये प्रिंसिपल्स तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है, और दूसरा है लास्ट में क्या कहता है ये, that it had risen to be the principal industry in the vast coastal region of Spain. The industry spread the industry spread dash the world and became dash profitable in terms of trade and resources. The principal spread. Hmm? Yes. कौन सा नाइन्थ का होगा? सर बी लग रहा है। देखो एक चीज याद रखो, थ्रू आउट एज अ preposition, ये preposition, ठीक है? इट्स अ preposition and it is one, ये तो अलग वर्ड नहीं है। थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये थ्रू आउट इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज डेफिनेटली थ्रू आउट द वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड या विद इन द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड या विद इन द वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। you look at this here, it says the industry spread throughout the world, in the world, in the world या फिर within the world, not making sense है। throughout the world सही है, and became dash profitable in terms of foreign resources and became increasing profitable, increasingly profitable या critically profitable। Which one do you think is correct? The industry became critically profitable या फिर increasingly profitable? इंक्रीजिंग। Increasingly मतलब more and more, बढ़ते जा रहा है। तो आज प्रॉफिट x है, कल x प्लस वाई प्लस परसों x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा है।
ठीक है, सो इट मेक सेंस व्हाई, बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर वो स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड है तो प्रॉफिटेबल इंक्रीजिंगली हुआ होगा ना। नथिंग इंस्टेंटेनियसली स्प्रेड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, it happens gradually. So if the industry is spreading across the world step by step, that means the profit also must have increased step by step. So it spread throughout the world, and the profits increasingly giving more and more profits, right? So this is given here. So if you scroll it over here, it says, right, this the industry spread throughout the world and became increasingly profitable. That means gradually, one by one, piece by piece. Okay, this was a very simple picture. Clear to all of you now? Increasingly क्या फर्क होता है? And again, here is a very interesting distinction between adjective and adverb. If you look at this sentence here, profitable is an adjective. This is an adjective. And when something comes to modify the adjective, it has to be the adverb. है ना? इसलिए increasing जो है, increasing and increasingly क्या फर्क है? Increasingly, ठीक है, तो ये increasingly है, ये increasingly profitable. Why? Because profitable is an adjective and adverbs can come and modify adjective. That's why increasingly profitable rather than increasing profitable. Rising temperatures, increasing temperatures, ठीक है, वो अलग चीज है. चलो, let me go to the next list. Please take this question. Vocabulary and word usage. Please read it first, and then I will show you the questions. पहला वाला बनाएंगे, बताओ आंसर क्या होगा. Sir, D. Gregarious. ग्रेगेरियस कहा कुछ लोगों ने, बेलुगा है. तो बेलुगा एक तरह का, आई थिंक एक तरह एनिमल है. बेलुगा वेल होता है. बेलुगास आर डैश एंड फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 10 एनिमल्स ऑन एवरेज. तो आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है. अच्छा, मुझे पता नहीं. बेलुगास आर डैश एंड फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 10 एनिमल्स. अच्छा, आप ग्रुप कब बनाओगे? जब गैरुलस होते हो, वर्बोस होते हो, गॉर्जियस होते हो, या ग्रेगेरियस होते हो? अच्छा, एक एक का पकड़ते हैं मीनिंग. व्हाट इज गैरुलस? एनीवन? जल्दी जल्दी, ये सब सर एग्जाम इनका में. मीनिंग बता दो सर एक बार ही. टॉकेटिव होता है, खाली बोलता रहता है, पक 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 करने वाला. एंड दिस गैरुलस इज टॉकेटिव इन द ह्यूमन सेंस. अगर आप ये मुझे कहोगे ना कि सर ये जो कुत्ते बिल्ली मेरे पड़ोस में है ये भी गैरुलस है, तो मैं हंस दूंगा आपके ऊपर. मैं कहूंगा देखो यार, कुत्ते बिल्ली हो सकता है कि वो बहुत चिल्लाते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गैरुलस है. जो बोलता है वो गैरुलस होता है. So humans can be garrulous, but animals cannot be. Are we clear, everyone? Verbose क्या होता है? समझे? Using too many words. Yes or no? Are we clear? कैसे एग्जाम्पल होगा वर्बोस का? कई बार लोग पूछते हैं ना कि भाई ठीक है, प्लीज टेल मी, कि मैंने आपसे पूछा कि अरे यार मुझे बताओ गुड़गांव से दिल्ली स्टेशन कैसे जाऊं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे गुड़गांव से दिल्ली स्टेशन जाने के लिए मेट्रो बेस्ट होता है. खत्म हो गया ना. एक और आंसर देगा आदमी, सर गुड़गांव से दिल्ली बहुत दूर है, इतनी ट्रैफिक होती है ना रोड में कि पूछो मत, और रिक्शा तो आपसे कम से कम 600 रुपये ले लेगा, ऊबर से जाएंगे तो 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे, और बहुत टाइम भी लग जाएगा. कई बार तो ट्रेन मिस हो जाती है लोगों की, मेरी भी ट्रेन मिस हो गई थी. आपके लिए मेट्रो बेस्ट होगा. पहला वाला आंसर शॉर्ट फॉर्म था एकदम, प्लीज यूज मेट्रो इफ यू वांट टू गो फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली, राइट. दूसरा वाला आंसर क्या था? वर्बोस. मतलब इतना ज्ञान दे रहा है, खाली बैठा हुआ है वो, कुछ काम धंधा नहीं है.
verbosity is used in cases where you have, verbosity is used for cases where you are using too many words. ठीक है? Garrulous is talkative. Gorgeous is beautiful actually, attractive, beautiful, stunning. And gregarious is sociable. Sociable का मतलब क्या होता है? मिल के रहना. So sociable is correct in this case, right? Because they are living in groups of 10 animals, right? Yes or no? Agree, all of you? Yes, sir. सही है ना? ठीक है? So belugas are gregarious and form groups of 10 animals. Although during the summer they can dash in 12. Sorry, they can dash in the hundreds or even thousands. So they can dash in hundreds, even thousands. क्या होगा? Accumulate, gather, survive, congregate. Gather. ओके गैदर सही है ना, गैदर हो सकता है ना. सरवाइव तो नहीं होगा, सरवाइव पक्का नहीं होगा, सरवाइव तो पक्का नहीं होगा. दे कैन डैश, गैदर हो सकता है ना. एक्यूमुलेट क्यों नहीं होगा? आपने एक्यूमुलेट क्यों नहीं मार्क किया? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, एक्यूमुलेट सही में गलत लग रहा है मेरे को, लेकिन क्यों गलत लग रहा है? एक्यूमुलेट नॉन लिविंग चीजों के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है शायद. हाँ बिल्कुल सही. एक्यूमुलेट आप सामान को करते हो एक्यूमुलेट. You accumulate money, you accumulate belonging, you accumulate something which can be collected, you know. है ना? accumulate, hoard करना, ये सब चीज है. दूसरा क्या होता है, बेलुगास खुद इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो गैदर होते हैं. मतलब आप खुद अगर इकट्ठे हो रहे हो, सी यू डोंट से आई एम accumulating all the kids. जैसे आप किसी क्लास के टीचर हो और आपने कहा पेरेंट्स को कि प्लीज कम अर्ली टुमारो, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक एट 8 o'clock, वी हैव टू एक्यूमुलेट ऑल द स्टूडेंट्स. तो बोलेंगे यार हमारा बच्चा कोई सामान है, कोई बॉक्स है, कोई बैग है, क्या एक्यूमुलेट करने वाले हो आप? ऑफेंसिव भी लगता है, खराब भी लगता है. तो एक्यूमुलेट चीजों को करते हैं, बट गैदर हम शायद हो सकता है चीजों को भी करें और एनिमल्स को भी कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स. यू गैदर इज दैट्स व्हाट गैदरिंग होती है ना. समझ रहे कि नहीं? जैसे कभी आपके स्कूल में गैदरिंग हुई होगी, गैदरिंग होती भी होगी, तो गैदरिंग इज अप्रोप्रिएट देन एक्यूमुलेट. सरवाइव का तो कोई चांस नहीं है. मतलब व्हाट इज कॉन्ग्रीगेट? इसमें क्या गलत लग रहा है? और कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा था ना एग्रीगेट, तो एग्रीगेट क्या होता है? इकट्ठा होना, सबको इकट्ठा करके ऐड करना. सेग्रीगेट क्या होता है? सेग्रीगेट होता है सबको सेपरेट करना, है ना? तो सेग्रीगेटिंग इज सेपरेट, एग्रीगेटिंग इज एडिशनल. तो कॉन्ग्रीगेट भी हो सकता है उसी तरीके से. बट व्हाई डिड यू नॉट यूज द वर्ड कॉन्ग्रीगेट? ऐसा क्या है कॉन्ग्रीगेट में तो सही नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड कॉन्ग्रीगेट शुड नॉट बी यूज्ड इन दीज काइंड ऑफ केसेस. मतलब जो कॉन्ग्रीगेट हम बोलते हैं ना, कॉन्ग्रीगेशन पता है कहाँ होता है? यहाँ ह्यूमन बीइंग्स एक पर्टिकुलर एजेंडा से इकट्ठे होते हैं. जैसे आपको देखूंगा ना मैं, तो जो ये कुंभ के मेले नहीं होते हैं, कुंभ के मेले, तो उसमें बोलते हैं इट इज द बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. व्हाई कॉन्ग्रीगेशन? बिकॉज पीपल हैव गैदर्ड विद अ पर्टिकुलर इंटेंशन. तो कॉन्ग्रीगेशन वो होता है जहां पे ह्यूमन बीइंग्स कुछ एक सर्टेन मोटिव से इकट्ठे होते हैं. एनिमल्स के लिए हम कॉन्ग्रीगेट शायद नहीं यूज करते, गैदर इज अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड. आर वी क्लियर एवरीवन? ठीक है. सो आपने दो ब्लैंक फिट कर लिए. एक तो था आपका पहला वाला 11th 12th. तीसरा क्या होगा? दैट दे कैन गैदर इन द हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स इन एस्चुरीज एंड शैलो कोस्टल एरियाज. दे आर डैश स्विमर्स बट कैन डाइव टू 700 meters बिलो द सर्फेस. अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा? दे आर डैश स्विमर्स बट कैन डाइव टू 700 meters बिलो द सर्फेस. क्या होगा? फास्ट, गुड, एक्सेलेंट या स्लो? सर स्लो. अर्चित ने कहा स्लो. बाकी लोगों का क्या कहना है? मैं एक ऑड वन आउट का मेथड यूज करता हूं हमेशा. इफ दे आर फास्ट दे कैन बी गुड, दे कैन बी एक्सेलेंट. तीनों हो सकता है ना. अगर मुझे ब्लैंक ही भरना है और मुझे अगर पॉजिटिव वर्ड ही यूज करना है, तो कैन आई से फास्ट इज एज इक्वल टू गुड एंड फास्ट कैन बी एज इक्वल टू एक्सेलेंट? कैन आई से दैट इफ आई यूज वन then why not the other, and if I use one then why not the other?
तो कैन आई से दैट अगर ये यूज करूंगा तो फिर ये दोनों भी यूज कर सकता हूँ, यानी कि ना आंसर ये है, ना ये है, ना ये है। क्या ये टेक्निक में यूज कर सकता हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन में? बताओ मुझे, पॉसिबल है नहीं है? यस सर। पॉसिबल है। तो इसको हम बोलते हैं ऑड वन आउट को पकड़ना। ऑड वन आउट को पकड़ने का मतलब क्या होता है कि जहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 अगर सिमिलर हैं तो तीनों तो आंसर नहीं हो सकते हैं। तो मैं उसको पकड़ूंगा जो मुझे लगता है यार कि ये ऑड वन आउट है, क्योंकि इसी को ही मैं फिट कर सकता हूं। अगर मैं ए को फिट करूंगा तो फिर बी और सी भी इक्वली बराबर है। अब फास्ट और गुड में कोई फर्क नहीं है। ही इज अ फास्ट स्विमर, ही इज अ गुड स्विमर, ही इज एन एक्सीलेंट स्विमर। हो सकता है एक्सीलेंट के लिए कुछ बहुत ज्यादा प्रेज किया गया हो, ठीक है। बट इफ यू गो अबव यू विल सी दैट देयर इज समथिंग which gives you a hint to the right answer, है ना। यहाँ पे देखो, उसने यूज किया है कंजंक्शन बट। दे आर डैश स्विमर्स, आई डोंट नो, बट कैन डाइव टू 700 meters। सो बट कैन डाइव मतलब कि दे आर कैपेबल ऑफ डाइविंग वेरी डीप। और चूंकि आपने बट यूज किया है तो यहाँ पे डीप डीप डाइव करते हैं, यानी यहाँ पे स्लो होंगे। यस और नो? स्लो स्विमर्स बट दे कैन गो वेरी डीप। Now you understand how but is justifying the two contrasting ideas. Yes or no? Clear to everyone? Yes, sir. है ना। तो but is a very very important clue. They can dive deep but they are a little slow, ठीक है। Okay. They are opportunistic feeders and their diets vary according to their dash and season. According to their dash and season क्या होगा? Their diet varies according to their dash and the season. So their diet varies according to locality, location, territory or place. सर लोकेलिटी लग रहा है। Location की what is locality? What is location then? Locality तो हमारी होती है ना, ह्यूमन बींग्स जहाँ रहते हैं। लोकेशन थोड़ी ज्यादा एग्जैक्ट हो गई, लोकेलिटी इज टाइप ऑफ, मतलब की स्टेट हो गया या हैबिटेट टाइप हो गया, हम्म, कि अच्छा। इसकी लोकेलिटी दिल्ली है, पर अगर लोकेशन बोलेंगे तो दिल्ली में वो। But locality, can I say locality is लोकेशन वेरी कर सकता है ना। लोकेलिटी स्टैटिक हो जाती है। तो लोकेलिटी इन विच आई लिव, मतलब मैं रहता हूँ वहां पर, मेरी एक लोकेलिटी है, वहां पर मैं रहता हूँ। सो द लोकेशन कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। अगर आप उबर को ट्रैक करते हो, है ना, इफ यू ट्रैक उबर, तो आप क्या बोलोगे, ये आपकी लोकेशन बताएं, मेरी लोकेशन चेंज हो गई है, राइट। सो कैन आई से दैट द लोकेलिटी इज कांस्टेंट वेयर एज लोकेशन माइट वेरी? यस सर। आपकी लोकेलिटी रोज नहीं चेंज होती, मानते हो कि नहीं इस बात को? अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो जो लोकेलिटी है आपकी वो हो सकता है थोड़ी सी मतलब अपर अर्बन हो। whereas if you let's say stay somewhere towards the more congested area of Delhi, then you will have a locality which is a little more crowded. So locality is mostly more permanent and long lasting. Location varies a lot, correct? Everyone agrees? Yes, sir. तो यहां पर क्या हो रहा है? They are opportunistic fish and their diets vary according to their dash and the season. इसका मतलब बेलुगास वेल्स हैं तो दे विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट। तो लोकेशन चेंज होता रहेगा, अकॉर्डिंगली डाइट्स विल चेंज, है ना। टेम्पररी बेस होता है लोकेलिटी का। सो देयर डाइट्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड द सीजन। मोस्ट बेलुगास लिव इन द आर्कटिक ओशन and the seas and coasts around North America, Russia, and Greenland. Their dash population is thought to number around 200,000. तो कैसा पॉपुलेशन है? वर्ल्ड वाइड, वर्ल्डली तो नहीं होगा। बाय द वे आई विल टेल द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्ल्डली। वर्ल्डली कौन सा होगा, वर्ल्ड वाइड होगा या वर्ल्ड वाइड होगा? वन वर्ड या टू सेपरेट वर्ड? सर वन वर्ड। वन वर्ड One होगा word. ना, वन वर्ड होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्डली?
earthly, worldly, क्या फर्क है दोनों? earthly, worldly, heavenly. वर्ल्डली मतलब क्या? दुनियादारी वाला. No, can I say worldly is basically belonging to the world? सर आवाज नहीं आ मैं मुझे लगता है वर्ल्डली जो है ना, सर वर्ल्डली आवाज नहीं आ रही. हाँ वर्ल्डली इज एक मिनट. हाँ अब आ रहा होगा ना? इज इट फाइन ना? यस सर. वर्ल्डली इज मटीरियल, है ना? वर्ल्डली इज मटीरियल, मटीरियल सेंस में. ठीक है, ये भी वैसे ही होता है मोटा मोटी, बट हेवनली इज समथिंग विच इज डिवाइन. सो वर्ल्ड एंड वर्ल्डली इज मटीरियल सेंस में द वर्ल्डली थिंग्स ऑफ लाइफ विच इज अपोज टू हेवनली. तो अगर कोई हेवनली का ऑपोजिट बोलता है तो वर्ल्डली भी हो सकता है, अर्थली भी हो सकता है, बट अर्थली इज somewhat little different, I think. ठीक है, anyways, let's not get into much that, है ना? They could be the same. Earthly is equal to worldly. Let's take the next question. Please try. Sorry. Account. Water vapor accounts for the largest percentage of the greenhouse. Okay, accounts for या account for? देखो, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ना, तो इसको वर्ब चाहिए, करेक्ट? तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस लग जाएगा ना. अगर ये वाटर वेपर है ना, अगर ऐसा होता वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बनता? अकाउंट फॉर हो जाता. राइट, एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट? Yes अकाउंट sir. फॉर द लार्जेस्ट. तो ये ध्यान देना, क्योंकि ये भी कहने को तो ये ग्रामर है, बट मेनी ऑफ अस माइट नॉट गेट दैट इन द एग्जाम एंड वी माइट मेक मिस्टेक. ठीक है, तो अकाउंट्स फॉर इज करेक्ट, अकाउंट फॉर इज रॉन्ग. अकाउंटेड फॉर क्यों नहीं होगा? इज अकाउंटिंग होगा तो अकाउंटेड फॉर क्यों नहीं होगा? बिकॉज प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए, है ना? वाटर वेपर कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट, ये आपने प्रेजेंट टेंस में यूज किया है ना. वाटर वेपर कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट रीजनली. तो अगर वाटर वेपर फ्लक्चुएट रीजनली है तो वाटर वेपर अकाउंट्स फॉर होना चाहिए, बिकॉज ये भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. सो इसको हम कहते हैं टेंस कंसिस्टेंसी. टेंस कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि if the entire idea is in the present tense, then you have to ensure that if there is an idea that is missing, that also has to come in the present tense if it is in the same context. समझ में आया? So water vapor accounts for the largest percentage of the greenhouse dash. क्या होगा? B part. B part होगा, B होगा या A होगा? इफेक्ट और अफेक्ट. अफेक्ट हमेशा वर्ब की तरह यूज होता है, ये वर्ब तो नहीं है ना. डिड यू अंडरस्टैंड? वाटर वेपर accounts for the largest percentage of the greenhouse effect. This is the answer. क्यों? Because we need a noun. द लग गया ना. अगर द लग गया है तो द लगने से यहां पे नाउन आएगा ना. ग्रीन हाउस तो एडजेक्टिव बन गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्रीन हाउस गैस,
तो अगर मैं लिखता हूँ ग्रीन हाउस गैस, तो डोंट एवर से दैट greenhouse is a noun. No, greenhouse might be a noun in itself, but in the context of the sentence, it is modifying the noun gas, and therefore it is acting like an adjective. Did you understand? So it's a अभी of course हो सकता है greenhouse effect एक word हो, तो in that case it might become different. ठीक है, but the लग गया है तो इसका मतलब जो भी आएगा वो noun ही होगा. तो greenhouse effect is a noun, sorry, effect is a noun rather than affect. Affected ये verb form है. I was affected by the incident, or the incident affected me. ठीक है, it's a verb form because you can always change the tense. And affectation क्या? Affectation basically means it's an affectation क्या होगा ये? Insincere display. Insincere display of something. It's an affectation. Insincere display of emotion को बोलते हैं. Are we clear, everyone? तो आपने क्या कहा कि water vapor accounts for the largest percentage of the greenhouse effect. Water vapor concentrations fluctuate regionally, but human activity does not directly dash water vapor concentrations except at dash levels. तो क्या होगा? But human activity does not directly क्या होगा? Does not directly कौन सा यूज होगा बताओ? Human activity does not directly affects D. D होगा ना? अब आपको ये देखना है कि इसमें वर्ब फॉर्म यूज होगा, अफेक्ट यूज होगा या अफेक्ट्स यूज होगा, राइट? अब यहाँ पर क्या है, देखो आपको ये भी ध्यान देना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो कोई क्वेश्चन बेवकूफ बना रहा है. देखो ह्यूमन एक्टिविटी, सॉरी सॉरी, बट ह्यूमन एक्टिविटी डज है, तो ये डज आ गया ना? समझ में आ रहा है? शायद किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, अगर डज है तो यहाँ पे अफेक्ट आएगा ना? यस और नो? समझ में आया कुछ? देखो दिखाता हूँ मैं. ह्यूमन एक्टिविटी affects water vapor concentration. सही है? Everyone agrees ये सही है. ह्यूमन एक्टिविटी सिंगुलर है, इसलिए अफेक्ट्स वर्ब आ गया और एस लगा दिया मैंने. ठीक है. अब ह्यूमन एक्टिविटी डज नॉट, तो उससे क्या होगा? ये डज जो है ये सिंगुलर प्लूरल होगा डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, और ये एस निकल जाएगा यहां से. आपको बताया था नहीं बताया था मैंने ये? एवरीवन? एवरीवन इज, आर यू क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डज के आने से देखो, शी अफेक्ट्स my she affects my she affects my performance, or she affects my morale, it affects my morale, something. It does not affect, because does के आने से ये यहाँ का s निकल जाएगा. और अगर मैं लिखता हूं they affect my morale, they होगा तो affect होगा, it होगा तो affects होगा. अगर does आ गया तो फिर affect हो जाएगा, बिकॉज अगर इसको मैं they कर दूं तो क्या हो जाएगा? they do not, it does not. आर वी क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो बहुत लोगों ने गलती की थी वो ये था कि यू क्विकली वेंट एंड मार्क्ड अफेक्ट्स, बट इसको आपने शायद देखा नहीं. ह्यूमन एक्टिविटीज डज नॉट, डज है ना, तो डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट होगा, तो इसका आंसर ये होना चाहिए. क्लियर एवरीवन? डज नॉट अफेक्ट है ना, डज नॉट अफेक्ट, अफेक्ट कहाँ गया यार? डज नॉट directly affect water vapor except at dash scales such as near dash fields. तो क्या होना चाहिए? ग्लोबल, लोकल, नेचुरली, आर्टिफिशियल.
एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? Human activity does not directly affect water vapor concentrations except at dash scales. Local scale होगा ना, बिकॉज यस अगर सर। कोई फील्ड के आसपास होते हो तो वहां पर ही उसका इफेक्ट होगा, उसके बाहर नहीं होगा। तो जो स्केल हो गया वो लोकल हो गया ना। लोकल हो सकता है, रीजनल हो सकता है, लोकल हो सकता है, रीजनल हो सकता है, कंस्ट्रेंड हो सकता है, बट ग्लोबल तो पक्का नहीं होगा, और आर्टिफिशियल नेचुरल भी नहीं होगा। कैन आई से आंसर शुड बी एवरीवन अग्रीज? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, एक मिनट। उसके बाद में क्या है? सच एज नियर डैश फील्ड्स, इरिगेटिंग फील्ड्स, इरिगेशन फील्ड्स या इरिगेटेड फील्ड्स? सर इरिगेटेड। इरिगेट किया हुआ है ना, तभी तो उसके यहाँ वाटर वेपर बढ़ेगा ना। Irrigated, that means water has been supplied, and because of that the water vapor effect might come out. Irrigation field है, लेकिन क्या पता वहां पे वाटर ना यूज किया गया हो। Did you understand everything? That why irrigated makes more sense than irrigation. Irrigated का मतलब है कि फील्ड को हमने इरिगेट कर दिया है, पानी चढ़ा दिया है, और जब पानी चढ़ेगा तभी तो वाटर वेपर उसमें से निकलेगा ना, उसके कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। इरिगेशन फील्ड है इसका मतलब ये नहीं कि उसको मैंने इरिगेट किया है। आर वी क्लियर एवरीवन? यस, कैन वी गो टू द Yes, नेक्स्ट? sir. हाँ, देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि ये डुएबल क्वेश्चन है, ये बहुत टफ नहीं है, बट यू कैन यूज लॉजिक एंड रीजन टू मार्क द आंसर। सो दिस बिकम्स वेरी मच अचीवेबल गोल फॉर यू, बिकॉज ऐसी ही बारीक रीजनिंग आप यूज करोगे जब क्वेश्चंस में शायद 3 ब्लैंक होगा या 2 ब्लैंक होगा। चलो प्लीज टेक दिस क्वेश्चन। अब सबसे पहले वुड्स होगा। क्या हो गया? पहले वाले का क्या होगा? वुड्स। देखो, देखो वुड और वुड्स में फर्क होता है, ये भी मैं शायद कोशिश करूंगा, बिकॉज देखो जितना मैं आपको वर्ड यूसेज पढ़ा दूं उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम ग्रामर भी कर रहे हैं, हम वर्ड यूसेज भी कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड वुड्स इज दैट वुड हो गया लकड़ा, जैसे मैं अभी बैठा हूँ तो जो टेबल है ये वुड का बना हुआ है, लकड़े का बना हुआ है। लेकिन जब आप वॉक करने जाते हो जहां पर थोड़े से घने बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो आप क्या बोलते हो? आई वेंट फॉर अ वॉक इन द वुड्स। शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम भी है जिसमें वुड्स यूज किया गया है। डिड यू अंडरस्टैंड? वो हमेशा प्लूरल में आएगा, वो कभी भी सिंगुलर में नहीं आएगा। ऑन द कस्प ऑफ विंटर, कस्प का मतलब पता है क्या होता है? कोई मुझे बताएगा कस्प का मतलब क्या होता है? हम्म, अपने यहाँ पे ठंड कब शुरू होती है? दिल्ली, इंडिया में नॉर्थ में ठंड होती है, साउथ में तो नहीं होती है, बट नवंबर एंड में होती है सर। नवंबर एंड में ठंड शुरू हो जाती है। तो जो ये अक्टूबर 25 से लेकर के नवंबर 10 तक का होता है, क्या ना ऐसे ये थोड़ा सा कस्प है, थोड़ा सा समर हल्का सा वार्म होता है, विंटर भी चालू हो जाती है, तो कैसे ये दोनों का हल्का हल्का है। सो कस्प वुड बी समथिंग लाइक द, एक मिनट सॉरी है, कस्प वुड बी समथिंग लाइक दिस। डोंट यू अग्री? दिस इज द कस्प। अग्री? On the cusp of winter 2021, I went for a walk in the woods near my house in Oxford by a bench that overlooks the city. I happened upon a moss covered log that glistened under the dash sky. कैसा होना चाहिए? ए पार्ट। ओवरकास्ट ए। हाँ, और ये कास्ट में ई आएगा क्या कि नहीं आएगा? स्पेलिंग मिस्टेक आता है आपके इसके अंदर सीयूईटी में?
ओवरकास्ट ऐसा है, यानी क्या, बिना ई के, ठीक है। ओवर, हाँ, सही जो आपने कस बताया, ये मतलब विंटर और समर के लिए ही है, मतलब नहीं नहीं नहीं, स्पेशली? कोई भी चीज हो सकता है ऐसे। अच्छा। कस्प, कस्प मतलब कि जब हम एक चीज से पास करते हैं दूसरी चीज में तो उसमें कस्प, जैसे मैंने सनशाइन में पढ़ा था, जैसे फॉर एग्जांपल जो जनवरी में पैदा होते हैं, तो जो जनवरी में पैदा होते हैं, तो जैसे मान लो कि 21 जनवरी से एक्वेरियन चालू हो जाता है ना, एक्वेरियस, और कब तक रहता है, 20 फेब तक रहता है, राइट। तो ये एक्वेरियस सनसाइन है। तो वो बोलते हैं कि जो 21 से 26 होता है ना, वो बेसिकली थोड़ा बहुत कैप्रिकॉर्न का भी प्रॉपर्टी ले लेता है, ठीक है, थोड़ा बहुत कैप्रिकॉर्न का प्रॉपर्टी लेता है, और वो थोड़ा बहुत एक्वेरियस का भी लेता है। तो ये जो होते हैं ना 21 से लेकर के 26 वाले, ये कस्प में होते हैं, मतलब कैप्रिकॉर्न जा रहा है, एक्वेरियन आ रहा है, तो वो थोड़ा दोनों का ऑलमोस्ट वो रहता है। समझ में आया कि नहीं? यू मूव फ्रॉम वन थिंग टू द अदर एंड बिटवीन दैट ट्रांजिशन पीरियड्स को बोलते हैं कस्प। आगे विंटर, सर आगे। हाँ विंटर पूरी तरह से आया नहीं था, ठीक है। चलो, ये तो वुड्स हो गया, ये ओवरकास्ट हो गया। यू कास्ट योर वोट, तो ये कास्ट होगा या ये कास्ट होगा? कौन सा कास्ट होगा जो आप ए का? ए होगा ना, काश। यू कास्ट योर वोट, ये फर्स्ट वाला कास्ट आप, होगा सर। हाँ ये कास्ट वाला अपना अलग कास्ट है, ठीक है। चलो एनीवेज, नेक्स्ट क्या होगा? एक मिनट, लेट मी क्लियर दिस, एक मिनट। I happened upon a moss-covered log that glistened green under the overcast sky. The moss leaves were as tiny and dash as the finest embroidery. As tiny and dash, क्या होगा? क्रिकेट। इंट्रिकेट। अच्छा, डेलिकेट क्यों नहीं होगा? मजा आएगा। मतलब आपने सही बोला है, आपने इंट्रिकेट बोला, सही बोला। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये डेलिकेट क्यों नहीं होगा? सर फाइनेस्ट लिखा हुआ उधर। एम्ब्रॉयडरी कैसी होती है, हैं? फूल, फूल जो होता है ना, फूल का पेटल, पेटल ऑफ अ लीफ, ऑफ अ फ्लावर, वो डेलिकेट होता है। एम्ब्रॉयडरी, कहना इसे वो एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसा पूरा धागे घुसे हुए होते हैं और बहुत फिनिश फाइन। पे करी जाती है सर, हाँ, काफी फिनिश पे करी जाती है लाइक। हाँ फिनिश से करते हैं। सर क्या होता है ना कि वो धागे जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के अंदर घुसे हुए रहते हैं, तो इट्स लाइक इंट्रिकेट है एकदम, मतलब बहुत ही महीन तरीके से उसको किया गया है। तो एम्ब्रॉयडरी में डेलिकेसी नहीं होती, बिकॉज आपको छुओगे तो आपका रफनेस लगेगा। तो डेलिकेट बोलना सही नहीं होगा, उसको हम इंट्रिकेट बोलेंगे, इंट्रिकेट पैटर्न। आर वी क्लियर एवरीवन? सर इट इज फिनिश्ड और फाइनेस्ट एम्ब्रॉयडरी। फाइनेस्ट है, फिनिश नहीं है, फाइनेस्ट है। फाइनेस्ट मतलब ऑफ अ हाई क्वालिटी। फाइनेस्ट। हाँ फाइनेस्ट चलेगा, फिनिश्ड भी लिख सकते हो, बट वो फाइनेस्ट बोलना चाह रहा है आई थिंक। As thin as I hate to admit, cling film. I brushed my dash over the dash bed. I brushed my dash over the dash bed. फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स होगा तो ये होगा ना, ओवर द डैश बेड। कैसा बेड है? फेदरी है, फेदरी फेदर्ड है, ए। हाँ? फेदरी ए। और फेदर्ड क्यों नहीं होगा? एडजेक्टिव्स में आया ना वो, फेदरी बेड। हाँ फेदरी, फेदर का फेदरी मतलब फेदर जैसा, और फेदर मतलब फ्रेड, फेदर से फैलाया हुआ। So here the bed is like a feather. That's why it is feathery. समझ में आया? The bed is like a feather and that's why feathery. Did you understand this, people? सर 23rd का क्या था आंसर? Intricate. What is सर इसमें, extricate? हाँ, हाँ इनके मतलब बता दीजिए दोनों के, एस्ट्रिकेट और एस्टरपेट के। हाँ, extricate का मतलब क्या होता है? हाँ, extricate का मतलब होता है निकालना। To extricate means to remove something. Did you understand? To extricate means to remove. To extricate means to remove something from somewhere. कोई चीज को आजाद कर देना, टू मेक समथिंग फ्री, ठीक है। और जो एक्सटर्पेट है, आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेट मी चेक। एक्सटर्पेट जो है, आई थिंक एक्सटर्पेट जो होता है वो होता है पापों से मुक्त करना, और टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ठीक है। आई विल राइट इट डाउन हियर, जस्ट कीप इन माइंड, क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हैं। एक्सटर्पेट मीन्स टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ठीक है। इंट्रिकेट मीन्स
Intricate means close and कॉम्प्लेक्स कैसा? complex here. Complex pattern. Extricate means to separate or remove. सर इन सर ओवरकास्ट का क्या एक्सट्रैक्ट भी मतलब सेम में था? एक मिनट, तो हम 3-4 लोगों ने साथ में बोल दिया, एक एक करके बोलो जरा। हेलो। सर ओवरकास्ट का क्या मतलब हुआ 22 में जो है ओवरकास्ट ग्लूमी होता है, ग्लूमी। जैसे कि बादल जब आ जाते हैं ना, तो बरस तो नहीं रहे लेकिन ओवरकास्ट, पता है क्रिकेट में ओवरकास्ट कंडीशन में बॉलिंग अच्छी होती है, सीम बॉलर्स को फायदा होता है। यस सर। सुना होगा ना, तो कौन सा कंडीशन होता है ओवरकास्ट? पिच रिपोर्ट में दिखाती नहीं टॉस के टाइम पे, द पिच रिपोर्ट। हाँ, तो थोड़ा सा रेन हो नहीं रहा है लेकिन रेनी जैसा होता है, तो मॉइस्चर से स्विंग हाँ मिलता है ना हाँ, बॉल को। मॉइस्चर मिल जाता है, क्योंकि ओवरकास्ट होगा तो सन है नहीं तो सूखेगा नहीं, तो थोड़ा मॉइस्चर मिलेगा तो बॉल स्विंग होने लगता है ना। तो ये ओवर्ट तो है ही नहीं। ओवर्ट मतलब क्या? देखो, ओवर्ट और कोवर्ट दो वर्ड होते हैं। कोवर्ट मीन्स सीक्रेट एंड ओवर्ट मीन्स ओपनली। कोवर्टली, ओवर्टली, ठीक है। कोवर्टली, सीक्रेटली, ओवर्टली, ओपनली। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर सर। एक्सट्रैक्ट भी सेम ही मीनिंग होता ना? हाँ, एक्सट्रैक्ट भी सेम ही होता है, लेकिन एक्सट्रैक्ट में क्या होता है ना, खाली आप निकालते हो। यू द डॉक्टर एक्सट्रैक्ट्स योर टूथ, है ना, एक्सट्रिकेट नहीं करता वो। एक्सट्रिकेट वो होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या फ्रीडम को इंपीड कर रही है ना। ओवरलैपिंग है पर ठीक है। कैन आई से दिस वाज अ हेल्पफुल फिल इन द ब्लैंक फॉर यू? फ्लेजलिंग क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? फ्लेजलिंग क्या होता है? जो बर्ड्स के नए नए बच्चे नहीं पैदा होते हैं, छोटे छोटे एकदम, जो हेल्पलेस होते हैं, तो फ्लेजलिंग उनको बोलते हैं। द फ्लेजलिंग मीन्स अ न्यूबॉर्न बर्ड, बेबी बर्ड। और द फ्लेजलिंग उसको भी बोलते हैं जो अभी नया नया शुरू हुआ है। द फ्लेजलिंग ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, मतलब जस्ट स्टार्ट हो रहा है। द फ्लेजलिंग ऑर्गेनाइजेशन। आर वी क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, उस सेंस में भी यूज होता है। द फ्लेजलिंग, अगर खाली द फ्लेजलिंग यूज होता है तो उसको, उसका मतलब है कोई बर्ड जो बहुत छोटा है, अभी उड़ नहीं पा रहा है। और और अगर आप ये बोलते हो द फ्लेजलिंग पार्टी, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी जब नई नई बनी थी तो उसको लोग यूज करते थे द फ्लेजलिंग पार्टी। क्यों फ्लेजलिंग पार्टी? क्योंकि वो नई नई पैदा हुई है, 2010 में पैदा हुई, 12-13 में, तो छोटा है अभी भी, कभी भी खत्म हो जाएगा या बहुत डेलिकेट है, वल्नरेबल है। क्लियर एवरीवन? ऐसा मैं और करा दूं आपको या इतना काफी रहेगा, मतलब एक आइडिया लग गया, या और भी करा दूं ऐसे क्वेश्चंस वाले? सर थोड़ा सा और डिफिकल्टी मतलब लेवल थोड़ा हाई। हाँ, डिफिकल्टी थोड़ा तो है नहीं, बट मेरे पास जीआरई के क्वेश्चंस पड़े हैं, अगर चाहो तो वो करा सकता हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा और थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। तो यस सर, जी जी मैट जीआरई के। जीआरई का मैं कराता हूँ, बिकॉज मेरे पास पड़े हैं शायद जीआरई के फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो अगर वो आपने कर लिया ना तो वो आपको हेल्प हो जाएगा, तो मैं एक और ऐसा ले लूंगा, ठीक है। यस सर, सर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा हो जाएगा, तो आप हाँ, वही राइट करवा राइट, दीजिए हाई लेवल के। ठीक 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 ठीक। तो एक लॉजिक लगाना आपने सीख लिया है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस करके इसको एक तरह से इसका अप्रोच हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। सर यस सीयूटी में सर। इसी लेवल के आएंगे? सीयूटी में ऐसे ही आएगा यार, इससे भी इजी है, मतलब ऐसा होता है, बट देखो क्या होता है ना, एक दो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होंगे, अगर वो ट्रिकी को आपने रॉन्ग कर लिया तो आपकी मेरिट पूरी गिर जाएगी। सर सी- फिर हम वो नहीं अटेम्प्ट करेंगे? नहीं तो सीयूटी में अटेम्प्ट करो ना आप, ऐसी तो क्वेश्चन आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे ना। सीयूटी बड़ा आसान पेपर है, प्रॉब्लम ये है ना कि अगर 8,000 लोग फुल मार्क्स लेके आते हैं, यानी एक भी छोटी गलती भी आपको महंगी पड़ जाएगी ना, है कि नहीं? ठीक है। हाँ जी सर। चलो मैं इसका रिकॉर्डिंग और पुराना एक रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर लेता हूँ, मैंने यूट्यूब पे सर अब अपलोड नेक्स्ट कर। क्लास कब होगी?
देखो मैं आपकी क्लास फ्राइडे और संडे लेने वाला हूँ, ठीक है। आज मंडे हो गया कि मैं बाहर आया हूँ, एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं एक फ्राइडे को लूंगा, एक संडे को लूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक भी होगा, Okay, ऐसा sir. नहीं है, बट ये इस वीक में 2 और होगा। जी सर। ओके सर, बाय। ठीक है, बाय हैव अ गुड डे। बाय। Thank you, sir. थैंक्स, बाय। Thank you, गुड sir. इवनिंग सर। थैंक्स, बाय।